Hello kids, again welcome in the basic grammar lesson. Today I am going to share the knowledge of parts of the speech. आज मैं आप लोगों को parts of the speech के बारे में बताऊंगा. Parts of the speech क्या होता है? तो actually in the last video we have studied, I have shared a knowledge to you about etymology. That means the part of grammar which deals with word and its usage, and that's why I have also explained word. Word is a group of letters which produce a sense. Here we speak lot of words in a day. हम लोग एक दिन में बहुत सारा वर्ड बोलते हैं, and they are of different kinds. अलग अलग तरह का वर्ड्स होता है. So for identification we have to classify them. इसलिए मुझे हमें उसे ग्रुप में करके अच्छे से पढ़ने के लिए ग्रुप में करना है, और उसी ग्रुप में करने के आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच? वर्ड्स are all the words whatever we are speaking. Words are divided, classified भी हम बोल सकते हैं, divided into 8 classes. 8 classes according to their function. According to their function in a speech. In a speech. Is known as parts of the speech. जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि यह सेक्शन, बेसिक इंग्लिश ग्रामर सेक्शन, आप लोगों को इंग्लिश के बेसिक टर्म्स को समझने में मदद करेगा, और निश्चय ही करेगा. सिर्फ आपको ध्यान देना है, ठीक है ना? और तो हमें यहाँ पर पढ़ना है पार्ट्स ऑफ द स्पीच. जितने भी वर्ड्स हैं, व्हाट एवर वी आर स्पीकिंग, जितने भी वर्ड्स बोल रहे हैं, सबको समझने के लिए अलग अलग ये 8 भागों में रखा गया है. लेकिन not on the basis of their structure and basis of their formation, how many letters used to form a word, इस बेसिस पर नहीं, एक्चुअली यूज के बेसिस पे. इन ए स्पीच, व्हाट इज स्पीच? स्पीच दैट मीन्स हम जो भी बोलते हैं, लिखते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, टेक्स्ट पढ़ते हैं, उस टेक्स्ट में उस वर्ड का क्या उपयोग है. जैसे कुछ वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ जिसके बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं. प्ले का मतलब खेलना भी होता है, और प्ले का मतलब नाटक भी होता है. एक जगह यह वर्ब का रूप में काम करता है और दूसरे जगह नाउन के रूप में काम करता है. वाटर मतलब पानी भी होता है, और हम पानी पटाने के टर्म के लिए भी वाटर का यूज करते हैं. एक जगह यह नाउन के रूप में उपयोग करता है, एक जगह वर्ब के रूप में उपयोग कर आता है. तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन इन ए स्पीच, द काइंड्स आर, दे आर, कौन कौन से काइंड्स हैं? जो 8 काइंड्स हैं, दे आर noun. At primary level, it is also known as naming word. Pronoun. Adjective.
This is called describing word. Verb. This is known as action word. Adverb. Preposition. Conjunction. Interjection. Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. These are the 8 kinds of words. These are the 8 kinds of word. Noun is also known as naming word. Whatever we are asking anything. यहीं पर बहुत सारी चीज देख रहे हैं. In my hand there is chalk. I am written on the blackboard. There is a Bluetooth device. This is a shirt. This is a duster. Whatever we are given a noun. We give a noun. Whatever. We give a name. Sorry. Whatever we give a name. This is known as noun. Now, जिन चीजों को हम कोई नाम देते हैं वो नाउन आ जाता है, नेमिंग वर्ड कहलाता है. प्रोनाउन. While writing a text, this is obvious to repetition of noun. मतलब कोई चीज लिखने, टेक्स्ट लिखने, स्टोरी ऐसे लिखने में बार बार एक ही नाउन का प्रयोग करना थोड़ा सा बद्दा लगता है. उसके लिए हम प्रोनाउन का उपयोग करते हैं. एक ही नाउन की जगह पर अलग अलग जगह पर हम प्रोनाउन का उपयोग करते हैं. एडजेक्टिव. एडजेक्टिव वैसे वर्ड्स होते हैं जो मोस्टली which describe the properties or qualities of noun or pronoun. जो noun और pronoun के qualities को बताते हैं. Verb, action word. Just I am writing here. Writing is my action, and that's why action word. Adverb. It describes the quality of verb and adjective and even an adverb. यह जो है एक एडजेक्टिव के, वर्ब के और खुद एक दूसरे एडवर्ब का क्वालिफिकेशन करता है. Preposition. Sometimes in a sentence more than one noun or pronoun are used. One noun or pronoun, more than one noun or pronoun are used. In that case, preposition establishes the relation between the two or more nouns or pronouns used in a sentence. In a sentence. Conjunction. These are joining words. That means when we use to join two words, two sentences, जैसे Ram and Syam, Mohan and Sohan, here and is joining word. He is playing and he is singing. Here and is joining word. So that is known as conjunction or interjection, which is quite different. The word which is used to, or words which are used to express sudden feeling, happiness or grief, sudden feeling, kept in the interjection. Ah, oh, hooray. Such kind of words are known as interjection. I hope you have familiar by these kinds of words. I will explain every kinds one by one.
First kind of parts of a speech is noun. What is noun? क्या है noun ये? All the naming words are called noun. All the naming words. Naming words are called noun. Called noun. Traditionally, a noun is a name of person, place, animal or things. Traditionally, a noun is the name of person, place, animal or things. मतलब इन चीजों के पर्सन के नाम, एनिमल्स के नाम, प्लेसेस के नाम और थिंग्स के नाम को नाउन कहते हैं। और इन चारों में तो ऑलमोस्ट सब कुछ आ ही गया। तो किसी भी चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं। कुछ भी आपके दिमाग में जो आपको कैमरा में भी इस वीडियो में भी बहुत सारी चीज़ों को देख रहेंगे और निश्चित रूप से उन चीज़ों को देखने के बाद आपके मन में एक नाम उभरता होगा, अच्छा ये है। जैसे इसको देख करके आपको लगता अच्छा ये बोर्ड है, इसको देख के आप लगता अच्छा चौक है। इस तरह से बहुत सारे नाम उभरते होंगे। तो उस जो भी मन में नाम उभर जाए उसको हम नाउन कहते हैं। फॉर बेटर स्टडी नाउन इज ऑल्सो क्लासिफाइड। नाउन को भी क्लासिफाइड कर दिया गया क्योंकि बहुत सारे दुनिया में वस्तुएं हैं, आदमी है, चीज है, जानवर है और इसलिए उनको क्लासिफाइड किया गया। तो नॉर्मली ट्रेडिशनली देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। Kinds of noun. One is proper noun. Second is common noun. Third is collective noun. Fourth is material noun. And fifth is abstract noun. I'm not going to write the definition of all these one. Just I am placing the example of all of them. Proper noun. इस सेक्शन में, नाउन के इस सेक्शन में वैसे वर्ड्स रखे गए हैं जो किसी खास पर्टिकुलर चीज के नाम है। जरूरी नहीं वो आदमी के हो, किसी भी चीज के पर्टिकुलर चीज के पर्टिकुलर नाम है। प्रॉपर नाउन इज द ऑल द पर्टिकुलर नाउन इज नेम एज प्रॉपर नाउन। ऑल द पर्टिकुलर नेम, पर्टिकुलर नेम जैसे अब मैं यहाँ हूँ, माई नेम इज धीरज। अभी इस फेस को देखते ही आपको याद आ जाएगा अच्छा ये धीरज है। और हो सकता है कि धीरज बहुतों का नाम होगा लेकिन इस तरह के फेस वाला धीरज कोई दूसरा नहीं होगा। तो ये पर्टिकुलर मेरा नाम का है। हम जब पटना कहते हैं तो हो सकता है कोई गांव का नाम रख ले पटना, लेकिन नॉर्मली जो पटना का आइडेंटिफिकेशन है वो बिहार का कैपिटल है। तो जब पर्टिकुलर हिमालय, पूरे दुनिया में बहुत सारे पहाड़ हैं, बहुत सारे माउंटेन्स हैं, लेकिन जब हिमालय कहते हैं तो दिमाग में आता अच्छा इंडिया की जो नॉर्थ साइड में है। तो जब पर्टिकुलर नेम के बारे में चर्चा हो तो हम कहेंगे कि वह प्रॉपर नाउन है। नाउन है लेकिन कैसा नाउन है? तो प्रॉपर नाउन है। द नेम ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स इज नोन एज प्रॉपर नाउन। लाइक धीरज, द नेम ऑफ पर्सन। Patna, name of place. Himalaya, name of things. Name of animal भी, जैसे आप एक डॉग पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, उसका नाम रख देते हैं टॉम। कुत्ता तो बहुत सारा हो सकता है, टॉम आपके पास है
तो वहां पर वो पर्टिकुलर नाउन कहलाएगा। कॉमन नाउन, अब यहाँ कॉमन नाउन की बात करते हैं। यहाँ देखिए धीरज, धीरज इज ए मैन, और मैन तो बहुत हो सकते हैं, मैन भी कहेंगे तो दिमाग में क्या आएगा? अच्छा मैन, जो मेल हो, पुरुष हो, अच्छा मैन, बहुत सारे हैं। धीरज मेरा नाम है, लेकिन मैन कहने से तो फिर दुनिया में जितने पुरुष हैं सारे के सारे तो वो कॉमन नाउन हो जाएंगे। पटना जगह है, जब हम प्लेस कहते हैं, विलेज कहेंगे, टाउन कहेंगे, पटना एक टाउन सिटी भी है, तो जैसे हम सिटी कहते हैं, सिटी, तो पूरे देश पूरे वर्ल्ड में जितने सिटी हैं सारे हो सकते हैं, तो ये कॉमन नाउन हो गया। हिमालय जैसे पहाड़ है, लेकिन जैसे ही हम माउंटेन कहते हैं, जितने भी पूरे वर्ल्ड में पहाड़ हैं सब हो गए, अरावली, फुक्सीमा, अल्पास, बहुत सारे पहाड़ हैं, तो ये माउंटेन हो गए। इसी तरह बहुत सारे एनिमल, हम जब काऊ कहते हैं, आपके काऊ का नाम लक्ष्मी हो सकता है, लेकिन हम जब काऊ कहते हैं तो दुनिया में जितने काऊ हैं सब काऊ हो गए, सबका नाम। अब काऊ कहने से गॉड का तो फिगर दिमाग में बनेगा नहीं, काऊ मतलब काऊ का ही फिगर बनेगा, लेकिन दुनिया में जितने काऊ हैं कोई भी हो सकते हैं। लेकिन जब काऊ का नाम, अपने अपने काऊ का नाम लक्ष्मी रख लिया तो सिर्फ आपके यहाँ होगा। लेकिन जैसे ही हम काऊ कहेंगे तो दुनिया के जितने काऊ हो सकते हैं सब हो जाएंगे। तो नेम ऑफ कॉमन थिंग्स is known as common noun. All the name of common things kept into the common nouns. Let me explain all these things. अब आते हैं कलेक्टिव नाउन। वैसे सारे चीज जिसको नॉर्मली इन बिहेव इन प्रैक्टिस हम हमेशा कलेक्शन में ही बात करते हैं, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे जब भी ग्रेप्स की बात होती है तो वो एक दो करके भी गिना जा सकता है, लेकिन ट्रेडिशनली ग्रेप्स कब रहता है? तो गुच्छा में, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे ही हम आर्मी कहते हैं, आर्मी का मतलब एक सेना, एक व्यक्ति को जो सेना में है उसको भी आर्मी कह देते हैं, लेकिन आर्मी का मतलब एक ट्रूप होता है जिसमें खास संख्या में 20, 25, 100 जो भी डिसाइडेड होता है उतने आर्मी मैन रहेंगे, तब वो आर्मी कहलाता है। टीम जब कहते हैं, आपने स्पोर्ट्स का टीम देखा होगा, कबड्डी का, क्रिकेट का, जैसे ही हम टीम कहते हैं तो क्या आ जाता है? जितने भी 11, 13, 14, 15 जितने भी टीम मेंबर हैं, प्लेयर्स हैं, सब के सब टीम में आ जाएंगे, तो ये सब वर्ड्स कहलाएंगे। जैसे ही हम क्लास करते हैं, एक तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास, क्लास पढ़ाई एक टीचर एक स्टूडेंट को भी करा सकते हैं, लेकिन क्लास कहने का सेंस ये हो जाता है कि मोर देन ए स्टूडेंट। सेंस का मतलब ये हो जाता है कि मोर देन ए स्टूडेंट सिटिंग इन अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टीचर इज एड्रेसिंग देम। मतलब बहुत सारे बच्चे एक जगह बैठे हुए हैं और उसको टीचर कुछ बता रहे हैं तो वो क्लास रहता है। क्लास का मेन कंपोनेंट है बेंच, डेस्क, बोर्ड, टीचर एंड स्टूडेंट, ये सब रहेंगे तभी क्लास होगा। चलिए मटेरियल, प्रैक्टिस में हम जिन चीज़ों को तौलते हैं, कभी कभी कंफ्यूजन होगा, जैसे ग्रेप्स, अब सेंस में अगर हम उसको तौल के ले रहे हैं तो उस कंडीशन में वही स्पीच की बात, यूज्ड इन ए स्पीच, जब हम कहेंगे 1 kg ऑफ ग्रेप्स, तो वहां पर ग्रेप्स को हम कलेक्टिव नाउन नहीं कह करके मटेरियल नाउन कहेंगे। तो ग्रेप्स वैसे चीज जिनको हम नापते या तौलते हैं। रोटी, नॉर्मली रोटी एक नहीं होता, हम कह देते हैं, लेकिन रोटी एक आटा का टुकड़ा होता है जिसको बेला जाता है। ब्रेड, तो पीस ऑफ ब्रेड कहते हैं, पीस ऑफ रोटी कहते हैं। तो उस कंडीशन में कपड़ा, जिस कपड़े से, जिस क्लॉथ से ये बनता है, वह एक या दो नहीं रहता, बड़ा सा टुकड़ा रहता है, उसमें से काट के बनता है, यानी पीस ऑफ क्लॉथ हुआ है। तो वैसे चीज ऑयल मापते हैं, मिल्क मेजरमेंट करते हैं,
क्लोथ, पीस ऑफ क्लोथ कहते हैं इसको। ये सब मटेरियल नाउन हो जाएगा, मतलब जिनको हम मापते या तौलते हैं। तो ऑल द मेजरेबल एंड वेटेबल थिंग्स आर नोन एज मटेरियल नाउन। All the things which is in collection, which is in groups together, is known as collective noun. अब आता है abstract noun। abstract noun किसको कहते हैं? तो इन सब नाउन का फिजिकल एविडेंस होता है जिसको हम देख पाते हैं, अच्छा ये। लेकिन abstract noun का कोई फिजिकल एविडेंस नहीं होता। हमारे इमोशंस, फीलिंग्स और स्टेट के नाम का कोई जो हम नाम देते हैं उसको एब्स्ट्रैक्ट नाम कहते हैं। जैसे सबसे बेसिक चाइल्डहुड, बचपना। बच्चे में भी बचपना हो सकता है और बड़े में भी बचपना हो सकता है। नहीं, जब बड़े बच्चों जैसा करते हैं, क्या कहते हैं, बच्चे जैसे मत करो, तो उस तरह की एक्टिविटी का नाम दे दिया गया चाइल्डहुड। लव, ये क्या है, फीलिंग है जिसका नाम दे दिया गया। कुछ देयर इज नो एविडेंस ऑफ लव, लेकिन हम हमारे एक्टिविटी से पता चलता है कि कोई हमारा किसी से हम प्यार कर रहे हैं या कोई हमारा एनिमी है। एक्टिविटी से पता चल जाता है। तो लव क्या हो गया, अब उसके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अब आते हैं फ्रेंडशिप, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। फ्रेंडशिप ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। Once I repeat, the name of proper things are known as proper noun. The name of common things are known as common noun. The name of things which is in group are known as collective noun. All the measurable and weightable things are known as material noun, and the name of feeling is known as abstract noun. Thank you. I hope this will help you, और निश्चय ही आपको मदद करेगा यदि आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं। इसमें किसी तरह की परेशानी हो तो वीडियो देखने के बाद आप कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।